students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. For the homework given to you, you may check your answers the following day. So yesterday I gave you practice question 10.17 to 10.22. I hope all of you have tried that questions. Let's check their solutions now. Here is the solution of practice question 10.17 in front of you. Find the pairs of parallel lines or segments. Give reasons for your answer. आपने ये बताना है कि इस गिवन फिगर में कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं या फिर कौन कौन सी सेगमेंट्स पैरेलल है और क्या रीज़न है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, by corresponding angles axiom, angle BAC is equals to angle DCF. Here is angle BAC and here is angle DCF. So these both are equal. Therefore, x plus 30 degrees equals to 85 and hence x is equals to 55 degrees. That means this red angle equals to 55 degrees. Now, angle AED is equal to 55 degrees. Line AC parallel to DE as AE is transversal. Now, this is also 55 degrees given to you. That means these two lines are parallel and getting cut by a transversal, and hence there is a formation of Z. I am highlighting with the yellow color. Hence you can see these are alternate interior angles. Therefore AC is parallel to DE. This is the first pair of parallel lines. Next is AB parallel to CD. AB is also parallel to CD because we have already proved that these are corresponding angles. And AC parallel to DE. So these two pairs are there which are parallel, and x is equals to 55 degrees. You can pause the video and note down the solution of this question. But if you have taken out already and there is any error, you can rectify, but if it is correct, then very good. Next, practice question 10.18. ABC is a triangle in which angle A is 72 degrees and the internal bisectors meet at O. Find angle BOC. Exactly same question is there in exercise 6.3 question number 2. You can also do this question following the way, but here also I will show you the proof of this question. You can match. First of all, they have applied angle sum property to find out the total of angle B plus angle C, and then they have divided by half to find out the total of this half B and this half C in this small triangle. Pause the video and note down up to here. Here is the remaining solution. So now we came to know in this triangle the total of these two angles is equals to 54 degrees. Hence by subtracting it from 180 we shall get this angle, that is 126 degree, because angle sum property of triangle is there. Pause the video and note down the solution. Practice question 10.19 is given to you. PQR is a triangle, this, and the bisector of exterior angle and the bisector of angle R intersect each other at O. इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को S पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. आपने ये प्रूव करना है दैट एंगल S इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P. अगेन द सेम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, लास्ट क्वेश्चन प्रूव वाला. ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप उस प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकते हो. सिर्फ आपने क्या करना है, नेमिंग को चेंज करना है. बट आई विल शो यू द प्रूफ हियर ऑल्सो. Here the proof starts. You can pause the video and note down, because ये question already आपको 2 times explain किया गया है. तो जो भी आपको solution easy लगता है, you can follow that solution. Here is the final slide of this question.
pause and note down. Must go through that question also and this question also. You will be able to understand कि सिर्फ लेबलिंग का फ़र्क होता है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता. बट अगर क्राइटेरिया डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट तो नहीं होगा बेटा, सिर्फ मार्किंग जो एंगल्स की है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ किया गया, बट वहाँ पे हमने प्रॉपर एंगल्स के नेम लिखे थे. तो दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन 10.20. साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड. आप देख सकते हो यहाँ पे बी सी साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया है, रे बी सी तक डी पॉइंट तक. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट एल. ए एंगल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला बाइसेक्टर बी सी को एल पॉइंट पे मीट कर रहा है. यू हैव टू प्रूव एंगल ए बी सी दिस प्लस एंगल ए सी डी दिस इक्वल्स 2 टाइम एंगल ए एल सी दिस. इन दोनों का टोटल इस एंगल के इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नोट डाउन गिवन एंड टू प्रूव. So here is the next slide. Pause the video and note down the solution. मैं एक बार आपको बता देती हूँ बेटा क्या है इस, मतलब इस क्वेश्चन में पहले इस ट्राइंगल में पहले या फिर बाद में भी हो सकता है. इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की गई है कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल है, और उसके बाद इस बड़ी ट्राइंगल में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल है. ठीक है. आप थर्डली एक और ट्राइंगल भी देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होगा. तो मोस्टली इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की गई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले तो ए बी एल ट्राइंगल में यूज़ की गई है. इसमें द सम ऑफ दीज टू वुड बी इक्वल टू दिस. ठीक है. जो है इसे मैं कलर कर देती हूँ. सेकेंड ट्राइंगल आपके पास है ए बी एल, ए बी सी, सॉरी इट इज़ ए बी सी. अब इन दोनों का टोटल इसके इक्वल है. ठीक है. फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है और सोल्यूशन निकाला गया. यू कैन पॉज एंड नोट डाउन. हियर इज़ द फाइनल स्लाइड. After noting down the full question, you have to go through the question twice. First of all, to come to know where the angles are located, and secondly, to confirm that the solution is well understandable to you. Practice question 10.21. AB divides angle DAC. AB जो है DAC एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सच दैट DAB एंड BAC आर इन रेशो 1:3. अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल इसका 3 टाइम्स है. मतलब अगर ये एंगल 10 डिग्री है तो ये 30 डिग्रीज होगा. राइट. एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी बी, और ये जो लाइन ए बी है ये डी बी के इक्वल्स है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स. सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल डी ए सी प्लस सी ए ई इक्वल्स 180 डिग्री. डी ए सी और ये एंगल 180 डिग्री लीनियर पेयर लगा दिया गया है. तो इससे आपके पास डी ए सी एंगल कितना आ गया है 72 डिग्रीज. अब दोनों एंगल्स निकाले गए हैं क्योंकि दोनों की रेशो गिवन है. तो डी ए बी की रेशो कितनी गिवन थी 1, और टोटल ऑफ रेशोज कितने हैं 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो 1/4 इंटू 72, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना है 72. तो इससे आपके पास डी ए बी एंगल आ गया है 72 डिग्री 18 डिग्रीज. पॉज एंड नोट डाउन अप टू हियर. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि दूसरा एंगल भी निकाला गया है. 72 में से सब्ट्रैक्ट करके भी आप बेटा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे निकाला नहीं है. अगर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट आपके पास देखो इस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ADC एंगल को निकाला गया. अगर ये एंगल है आपके पास 18 डिग्री तो ADC भी 18 होगा, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल थी. एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हमेशा दो एंगल्स भी उसके इक्वल होते हैं जो उन साइड्स के ऑपोजिट होते हैं. ओके. नाउ एंगल ACD प्लस ADC. हियर इज ACD प्लस ADC
equals EAC equals to this. Why? This is a triangle and this is the exterior angle which I am highlighting. So it would be equal to the sum of these two interior angles which I have shaded with black. This have been applied, hence angle X is equals to 90 degrees. Pause and note down the complete solution. Here is the final question. Practice question 10.22. PS is the bisector of QPR. QPR का बाइसेक्टर आपके पास दिया हुआ है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है थ्रू दिस बाइसेक्टर. And PT is perpendicular to QR. You have to prove angle TPS, that is, I am again highlighting angle TPS, ये छोटा सा एंगल, is equal to half of angle Q minus angle R. For such kind of questions in which you need to prove something, you must focus on the angles which have been asked in the proof. So first of all, write given and to prove. Here is a proof in front of you. QPS is half angle P. QPS एंगल जो है, इतना एंगल पूरे P एंगल का हाफ है एग्जैक्टली. एंगल Q प्लस एंगल QPT इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल Q प्लस एंगल QPT, इन दोनों का टोटल मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ. द टोटल ऑफ Q एंड टोटल ऑफ QPT, these total equals to 90 डिग्री. क्यों बेटा? क्योंकि जो ये एंगल दिया हुआ है आपको, रेड वाला मार्क करने जा रही हूँ मैं, ये 90 है, तो बाकी दोनों बचे, इनका टोटल भी कितना होगा? 90 डिग्रीज. और ये रेड वाला 90 क्यों है? बिकॉज इसके साथ जो लीनियर पेयर में एंगल बन रहा है वो भी 90 का है. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया. तो इस स्टेप से इस स्टेप पे जब हम आए तो Q शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड. ओके, now angle TPS, this angle, ये छोटा सा, equals to QPS minus QPT. QPS में से अगर हम QPT को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा, राइट. तो QPS की वैल्यू पुट कर दी गई है यहाँ से, देख सकते हो आप, और QPT की वैल्यू पुट कर दी गई है यहाँ से. ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो माइनस साइन रिजॉल्व विद अनदर माइनस साइन इज गिविंग पॉजिटिव साइन. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन अप टू हियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, QPR gives rise to 180 degree in this big full triangle. तीनों, इस पूरी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का टोटल कितना है? 180 डिग्रीज. तो इनका हाफ कितना होगा? 90 डिग्री. यस, ऑब्वियसली 90 डिग्री. नाउ TPS इज इक्वल टू हाफ P माइनस हाफ Q प्लस P प्लस R प्लस Q. अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है ना. तो इसके लिए मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगी. यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू पुट है तो इसे रिप्लेस किया गया है. अब नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ 90 डिग्री था वहाँ पे ये वैल्यू आ गई, बिकॉज इस इक्वेशन से 90 डिग्री को हमने इसके इक्वल प्रूव किया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि इसे 90 डिग्री के इक्वल प्रूव किया है, तो 90 को हटा के हमने ये लगा दिया. नाउ अगेन opening the bracket, resolving it, the signs will get changed because outside there is negative sign. तो अंदर जितने भी साइन है, अब ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में बदल गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में बदल गया, ठीक है. और आप देख सकते हो कि नाउ कटिंग इज पॉसिबल. कौन सी कटिंग होगी? हाफ P कट विद माइनस हाफ P. ओके, एंड देन फुल Q में से हाफ Q माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? हाफ Q. ओके, सो here you can see in the next slide
हमारे पास बच गया हाफ क्यू माइनस हाफ आर, तो दोनों में से हाफ कॉमन निकाल लिया. अल्टीमेटली वी गॉट व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, दैट इज एंगल TPS इक्वल्स टू हाफ होल एंगल Q minus angle R. You can pause the solution timely. You can pause the solution at every slide to complete it. So students, today we are going to start our next topic, that is Introduction to Mathematical Modeling. For this you can refer SB 29 in your supplementary book, and you will find a NCERT lead mapping on the page in which introduction, review of word problems, some mathematical models, the process of modeling, its advantages and limitations, along with the summary is given to you. You can refer NCERT pages to interlink the topic with lead pages. NCERT lead mapping is very important for you because it will help you to find out the same topic in both the books. जो टॉपिक SP29 पे गिवन होगा वो आपको NCERT बुक के 306 पेज पे मिल जाएगा. एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग. ओके, so let's start this topic. What is exactly mathematical modeling? What are its advantages? What are its limitations? Where this will be used or this is getting used? What kind of word problems we can have in this topic? For this you can refer concept time 13 in your supplementary book. You have 5 seconds to open the book. Here your time starts. 5, 4, 3, 2, 1. Also open your NCERT book at page 306. Mathematical modeling. You can think of a situation that in our everyday life, where do we use mathematics to solve a problem? हम मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में? Here are few examples. Whenever you go to market, you calculate your bill. जितनी आइटम्स आप परचेज करते हो उसका बिल बनता है, वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ होता है. इनफैक्ट व्हेनेवर यू यूज़ टू गो टू मार्केट, टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे गए, किस टाइम पे आए, वहाँ क्या क्या ख़रीदने जाना है, और एटलीस्ट मिनिमम कितने रुपीज़ का बजट बनेगा या मैक्सिमम कितने रुपीज़ का बजट बनेगा, आप कितना टाइम लगा के आओगे. अगर फैमिली मेम्बर्स इतने हैं, फ़र्ज़ करो कि आप समोसे ख़रीदने जा रहे हो, अगर 10 फैमिली मेम्बर्स हैं एंड एवरीवन वांट्स 2 समोसास, तो हाउ मच समोसास यू विल परचेज 20 समोसास. बट उससे पहले आप एक कंफर्मेशन ले लेते हो कि आप कितने खाओगे. ठीक है. सो आई थिंक there is no situation where maths is not getting used. Secondly, to compare the performances of players in our favorite sports. हम टीवी देखते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन सी 2 टीम्स खेलेंगी, राइट, और कितने मेंबर्स हैं दोनों टीम्स में, ये होता है. ओके, फील्ड कितना बड़ा है, जो 4 एंड 6 लगते हैं वो उनकी लेंथ तक कितनी होती है, और कौन सा बॉलर जो है कितनी बॉल्स कितने ओवर्स डालेगा, कितने रन्स स्कोर किए एक टीम ने, कितनी विकेट्स गिर गई. आई थिंक देयर इज़ नो सिचुएशन वेयर मैथ्स इज़ नॉट देयर. डेली लाइफ में हर टाइम हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं. So what could be the steps we can follow to solve these problems? Think of how we solve these problems. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक्चुअली कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है. मैच देख रहे हो तो कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, मार्केट जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, घर में कोई आया है खाना बनाना है 10 बंदों के लिए, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन करते हैं. We first understand the problem and write it as an equivalent mathematical problem. सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं कि ये किस फील्ड का क्वेश्चन है. Then solve. We then solve the mathematical problem. फिर हम उसे सॉल्व करते हैं
Interpret. We then interpret the solution in the terms of a real world problem. फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि हमने ऐसा किया. For example, you can take this example. Ajay travelled 384 kilometers on 48 liters of petrol in his car. अजय ने 384 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया 48 लीटर्स पेट्रोल यूज़ करके अपनी कार में. ही हैज़ टू गो बाय हिज कार टू अ प्लेस विच इज़ 160 किलोमीटर्स अवे. उसने एक प्लेस पे जाना है जो उसके करंट सिचुएशन से 160 किलोमीटर्स अवे हैं. हाउ मच पेट्रोल डज ही नीड. तो उसे कितना पेट्रोल चाहिए होगा 160 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए. जनरली इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन मेथड. बट हाउ मैथमेटिकल मॉडलिंग इज सपोर्टिंग दिस. So first of all, we'll follow the first step, formulation. इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा. x अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और y पेट्रोल नीडेड है, एज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ तब होती है जब एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़े, एक के कम होने के साथ दूसरा भी कम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा. अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो कम पेट्रोल डलवाना पड़ेगा. सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेरीज डायरेक्टली. हैंस y इक्वल्स टू के एक्स वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट. तो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी. अगर 384 किलोमीटर्स के लिए 48 लीटर्स पेट्रोल लग रहा है तो 48 लीटर्स विल बी इक्वल टू k टाइम्स 384. और जब 384 48 के साथ जाके डिवाइड होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8. दैट मीन्स यहाँ पे आप जब k की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली मैथमेटिकल मॉडलिंग के फर्स्ट स्टेप से द रिलेशनशिप बिटवीन द पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ गया y इक्वल्स टू 8x/8. ओके, दैट मीन्स अगर जितना डिस्टेंस आपके पास है उसको 8 से डिवाइड करोगे तो उतना पेट्रोल आपको चाहिए होगा. Here is step 2, solution. Now we shall solve. अब हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था 160 किलोमीटर्स. तो हम 160 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे बिकॉज हमारा कांस्टेंट ही 1/8 आया है. 8 डिनोमिनेटर में है तो मैं बोल रही हूँ कि 8 से डिवाइड करेंगे. अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू आर गेटिंग 20. Hence, the third step interprets that Ajay needs 20 liters of petrol. So you can see with the help of mathematical modeling आपने एक formulation को follow किया, solution को follow किया और interpretation को follow किया और आपको ये पता लग गया कि इस चीज़ के लिए मुझे कितना पेट्रोल चाहिए. So for this topic you can go through concept time 13 which is given at SB 29 in your supplementary book and the very next page SB 30. तो अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. सेम ही एग्जाम्पल जो है आपको उसी पेज पे मिलेगी. एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज जस्ट टू गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट एंड सेकेंडली यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 इन योर फेयर नोटबुक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैप्पी लर्निंग.